السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس نے مزید 47 زندگیوں کا خاتمہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1303 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کرونا وائرس سے 47 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,576 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,38,737 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,303 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,43,499، سندھ میں 3,26,413، خیبر پختونخوا میں 1,35,383، بلوچستان میں 26,084، گلگت بلتستان میں 5,682، اسلام آباد میں 82,001 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,675 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,37,45,973 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,483 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,73,543 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,841 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 47 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,576 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,457، سندھ میں 5,196، خیبر پختونخوا میں 4,194، اسلام آباد میں 769، بلوچستان میں 292، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 560 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں موبائل یونٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور نیشنل بینک کے اشتراک سے قرضوں کے حصول میں سہولت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے کم لاگت گھروں کی درخواستوں کی وصولی کے لیے موبائل یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی میں ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کم لاگت گھروں کی درخواستوں کی وصولی کے لیے موبائل یونٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی میں ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ بینکوں کی جانب سے عوام کو گھروں کے لیے قرض کی فراہمی کو ممکنہ حد تک آسان بنایا جائے۔ موبائل یونٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور نیشنل بینک کے اشتراک سے قرضوں کے حصول میں سہولت فراہم کرے گا۔ موبائل یونٹ پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کے تحت قرضوں کے لیے ون ونڈو آپریشن فراہم کرے گا۔ ابتدائی طور پر موبائل یونٹ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں سہولت فراہم کرے گی۔ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ دہشت گردی کی یہ قابل مذمت حرکت مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ خیال رہے کہ کینیڈا کی ریاست آنٹیریو کے شہر لندن میں ایک 20 سالہ نوجوان نتھینیل ولٹمن نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں اس خاندان کے 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود وفاقی حکومت کا مالی سال 2020-21 کا 8,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ بجٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने माली साल 2020-21 का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट का हजम 8,487 अरब रुपए रखा गया है। खसारे का तखमीना 3,990 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 1,370 अरब रुपए और कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर की गई है। पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। शौकत तरीन का कहना था कि वफाकी बजट का हजम 8,487 अरब रुपए रखा गया है। 20 अरब के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 में सरप्लस किया गया। सब्सिडी का तखमीना 682 अरब लगाया गया। फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए किया जा रहा है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब की नफसियाती हद उबूर कर चुकी है। टैक्स वसूलियों में 18% बेहतरी आई है। टैक्स रिफंड की अदायगी में 75% इजाफा किया है। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई। तरसीलाती ज़र में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। रुपए की कदर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी। करंट अकाउंट खसारा 2018 में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उस पर काबू पा लिया गया है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिकदार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। बैरून मुल्क से तरसीलात में इजाफा इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़ है। बैरून मुल्क से तरसीलात में 25% इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है 29 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब रुपए देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तिराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है। तरक्याती बजट को 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 40% से ज़्यादा का इजाफा कर रहे हैं। अगले 2 से 3 साल में 6 से 7% गिरोथ के इकदाम कर रहे हैं। अगले माली साल के लिए मौशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा है। क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज्यादा का इजाफा है। Number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen Minister. पाकिस्तान में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। असद उमर कहते हैं, हमारा हदफ इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना है। वफाकी वजीर असद उमर ने शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा है कि जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन होगी उतनी ही तेज़ी से बंदिशें कम कर सकते हैं। इस हवाले से NCOC में एक तकरीब हुई जिसमें वफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर का मजीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान ने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। इस हवाले से NCOC में एक तकरीब हुई जिसमें वफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर ने बताया कि हम 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है, जबकि हमारा हदफ इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं और तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज़्यादा को। लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। तो अभी हमारे पास अभी बहुत और मेहनत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और तकरीबन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन रोज़ाना आ रही हैं। रोज़ाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है और दूसरी डोज वाले अलग हैं। अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोज़ाना आती हैं। असद उमर ने शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगी उतनी ही तेजी से बंदिशें कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रोजगार मुतासिर हो रहा है, हमें इसको भी खत्म करना है और लोगों की सेहत को भी बचाना है। वफाकी वजीर का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर में जो इकदाम किए गए थे उनका असर नजर आया। ईद के बाद केसेस में मुतवातर कमी देखने में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी 3000 से ज्यादा अफराद ऑक्सीजन पर हैं, इसलिए खतरा टला नहीं है। जितनी तेजी से वैक्सीन लगती जाएगी उतने ही खतरे से हिफाजत मिलती जाएगी। जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, उसको भी हमने खत्म करना है। और जाहिर है जो सेहत के ऊपर असर है वो भी लोगों को उससे बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इकदाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर उनका असर नजर आया हमें। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है वबा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आज भी 3000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल केयर के यानी ऑक्सीजन के ऊपर पाकिस्तान के अस्पतालों में हैं कोरोना के मरीज, इसलिए खतरा टला नहीं है। इमरान खान असल चेयरमैन नायब हैं। मरियम नवाज कहती हैं एहतसाब अब उनका भी होगा जो आला कार बने हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि असल चेयरमैन नायब इमरान खान है, एक को हटा दें एक को लगा दें। बशीर मेमन का बयान मौजूद है कि इदारों को किस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ क़यामत के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि असल चेयरमैन नायब इमरान खान है, एक को हटा दें एक को लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ क़यामत के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की इतनी बड़ी गवाही आई है, आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक जज का मामला नहीं, अदलिया को समझना चाहिए। कल वो सब जज कटहरे में खड़े होंगे जो आज केस सुन रहे हैं। अदलिया को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि किसी भी जज से कोई गलत फैसला ना ले सके। जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे, जुडिशरी का केस समझे और हमेशा के लिए जुडिशरी के ऊपर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं उसको ख़त्म करे। वरना शौकत अजीज सिद्दीकी की जगह कल कोई और जज साहब खड़े होंगे और सरीना ईसा की जगह किसी और जज साहब की बेटी या वाइफ या बहन खड़ी होंगी। तो इस चीज़ को इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज का कहना था कि PDM में कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें शामिल तमाम जमातें एक पेज पर हैं और सबका वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का है। हाँ, पीपल्स पार्टी PDM में शामिल नहीं। लीगी रहनुमा ने कहा कि असल में चेयरमैन नायब तो इमरान खान है, वो जिसको चाहे ओहदे से हटा दें और जिसको चाहे लगा दें। जो भी इमरान खान का आलाकार बना हुआ है, जिस तरह चेयरमैन नायब हैं तो ये उनको भुगतना पड़ेगा। एहतसाब उसका भी होगा जो आलाकार बनेगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।